नमस्कार, पंजाब डिबेट में आपका स्वागत है। और पंजाब डिबेट में आज बात करेंगे बजट की। साल 2021 और 22 के लिए केंद्रीय बजट पेश हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया मोदी सरकार का यह बजट आम आदमी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? क्या यह बजट वाकई में देश के विकास का बजट साबित होगा? क्या इस बजट से देश का किसान खुशहाली की राह पर कदम रख सकेगा? क्या असल में यह बजट आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बल देगा? पंजाब डिबेट्स में आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तो साल 2021-22 के आम बजट से देश के आम आयकर दाता को कोई राहत नहीं मिली है। हां, सीनियर सिटीजन को बजट में बड़ी छूट जरूर दी गई है। 75 साल की उम्र से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। 75 साल से ऊपर के पेंशन धारकों को टैक्स में भी राहत दी गई है। I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now, in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. Our tax system has to be transparent, efficient, and should promote investments and employment in our country. At the same time, it should put minimum burden on our taxpayers. तो सरकार का दावा यह भी है कि केंद्रीय बजट 2021 से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। और बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि एमएसपी लगातार जारी रहेगी। सरकार का लक्ष्य साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का है। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. The number of wheat growing farmers that were benefited increased in 21 to 43.36 lakhs compared to 35.57 lakhs in 2019-20. That much of an increase within 1 year. For paddy, again an important data. For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. Agricultural Infrastructure Fund would be made available to the APMCs for augmenting their infrastructure facilities.
चलिए आज पंजाब डिबेट पे क्या अहम सवाल है उस पर भी एक नजर डालते हैं। सवाल यह है कि क्या 2021-22 का केंद्रीय बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है, यह डिबेट का पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या केंद्रीय बजट पूरी तरह से वैक्सीन और चुनाव और किसानों पर फोकस रहा है। तीसरा सवाल यह है कि क्या केंद्रीय बजट 2021 और 22 से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। क्या 2021 और 22 के केंद्रीय बजट से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। तो देश की उम्मीदों पर आखिर कितना आम बजट खरा उतरा है, ये एक बड़ा सवाल है। आज इस पर ही हम चर्चा करेंगे क्योंकि कोरोना के बाद इस बजट से जनता को बहुत उम्मीदें थी। और चलिए पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। मोहाली का सीधे रुख कर लेंगे। अरुण हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, बहुत उम्मीदें थी कोरोना के बाद इस बजट से, फिलहाल किस तरीके से मोहाली की जनता इस बजट को देख पा रही है, क्या उनकी उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। जी आयुष, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, NGO ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ। ਵਿਰਕ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਰੁਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਸਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਸਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 17 ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਗੁਣਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ? ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਆਯੂਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 100 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰੁਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਂਹ ਪੁਰਖ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਖ ਬਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ, ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 13% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਨਾ, ਸਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਹਨਾ, ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 8 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਬਜਟ ਹੈ। ਜੀ ਆਯੂਸ਼, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, परंतु ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ नेगेटिव रिस्पॉन्स ही हैगा बजट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। लेकिन अरुण देखिए, बजट से निराशा हाथ लगी है, ये बात तो समझ में आ रही हो, ये भी कह रहे हैं कि जो होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जरा ये पूछिए कि ऐसी क्या उम्मीदें थी इस बजट से? इस बार जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं, क्या चाहते थे वो इस बजट के अंदर जो नहीं हुआ इस बजट के अंदर? थोड़ा इस विषय को लेकर के भी बातचीत करें। जी 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 ਵਿਰਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋਗੇ ਕਦੋਂ? ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ।
गली सड़ी हुई जेकर कणक दे के तुसीं कह दिंदे हो कि ਅਸੀਂ बहुत मदद की है तो बहुत ਉਹ ਜਿਹੜੀ मदद नहीं हैगी। जो सरकार ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ है। जी आयुष, तुसी देख एक सकते सवाल और उनसे पूछ लीजिए, जो कि रोज बजट के बाद प्रतिक्रियाएं ये भी आई, ये भी कहा गया कि चुनावी बजट भी है एक तरीके से, जिन स्टेट में इलेक्शंस होने हैं उसको भी फोकस किया गया है। क्या इस बात से वहां पंजाब के लोग भी इत्तेफाक रख रहे हैं? उनको भी लग रहा है कि हाँ, जो चुनाव वाले राज्य हैं वहां पे एलोकेशन ज्यादा हुए इसलिए उसको चुनावी बजट कह सकते हैं? जी एक ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਆਪ ਭਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਆਯੂਸ਼, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਉਮੀਦ ही ਹੋਏ ਨੇ। जी आयुष, अरुण, किसानों को लेकर के भी थोड़ा सा बातचीत और कर लें, आपके अगल बगल जो और लोग हैं, क्योंकि किसानों को लेकर के सरकार ने एक बार फिर से कहा कि वो किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करेगी, उनके लिए अलग से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, फिशिंग के सेक्टर में हम लोग नए पोर्ट बनाने वाले हैं, इस तरीके के कुछ तमाम ऐसे नए प्रावधान हैं जो कि इस बार इस बजट के अंदर देखने को मिल रहे थे। लेकिन क्या इससे संतुष्ट हो रहा है किसान? और खासतौर से चूंकि किसान आंदोलन चल रहा है, तो उन सब के बीच में इस बजट को किसान से जोड़ते हुए थोड़ा सा बातचीत करें, जो और लोग आपके आसपास हैं। जी 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 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਅਗਲਾ? ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਨੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1.5 साल जी जी ठीक है। किसानों एक सवाल और पूछते चले, चूंकि किसानों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो इस बजट के अंदर वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अब चूंकि मंडियों को लेकर के किसानों को बहुत आपत्ति थी कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, और दरअसल ये विरोध शुरू भी यहीं से हुआ था कि मंडियां सरकारी खत्म होंगी, सरकारी खरीद नहीं होगी तो किसान को नुकसान होगा। 1000 नई मंडी बनाने की बात कही गई है। क्या ये लग रहा है कि किसानों को फोकस करते हुए ऐसा किया गया है, या विरोध प्रदर्शन के चलते ये कोशिश हो रही है कि किसानों को मनाया जाए या ये दिखाया जाए कि हम मंडी सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं? ये जो 1000 मंडी बनाने की बात कही गई, इसको कैसे वहां पंजाब में किसान देख रहा है, इसको लेकर के भी थोड़ा बातचीत करें।
ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1000 ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜੀ ਸਿੱਧਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੀ जी धन्यवाद जी। आयुष तुसी सुनिया कि जेड़ा इन्हां दा चले अरुण, बहुत शुक्रिया फिलहाल हम इस बातचीत के लिए, इस तमाम लोगों की प्रतिक्रियाओं को पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को देश के विकास का बजट बताया और यह भी कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भरता का विजन है और इस बजट में नए अवसर लोगों को मिलेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा गया, सुनिए। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो है ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। तो प्रधानमंत्री की बात को आपने सुना, विकास का बजट प्रधानमंत्री ने बताया, लेकिन आम आदमी की उम्मीदों पर ये कितना खरा उतरा है ये अपने आप में एक सवाल है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। जगतार संघेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। जगतार संघेड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राजेंद्र दीपा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। राजेंद्र दीपा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र दीपा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। प्रधानमंत्री को अभी आप सुन रहे होंगे और वित्त मंत्री ने आज जो बजट पेश किया, कोरोना के बाद बड़ी उम्मीदें थी कि इस बजट से आम आदमी को या फिर किसान को या हर एक शख्स को कुछ राहत मिलेगी। ओवरऑल आज इस बजट को आप कैसे देखते हैं जो आज पेश किया गया है? 7वां शायद बजट होगा प्रधानमंत्री का। शुरू के 2-3-4 बजटों में तो थोड़ा सा लगता था कि नई विजन है, नया कुछ प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन अब तो लोगों को, आम लोगों को बिल्कुल प्रधानमंत्री पे विश्वास ही नहीं रहा। जो मर्जी आंकड़े ये पेश करते रहे, बात करें, किसानों की बात करें, आम जन की बात करें, लेकिन अब जो विश्वास ही उठ गया इस सरकार से और इस प्रधानमंत्री पे, इस बजट की बात क्या करें।
आंकड़ों में जरूर बड़ा बड़ा दिख सकता है, लेकिन इस बजट में कुछ भी नहीं है, ना किसानों के लिए ना आम लोगों के लिए। किसानों की बात करते हैं, चाहे 6,000 से 10,000 रुपया कर रहे हैं या कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसा बढ़ाएंगे, वो तो पता नहीं क्या फायदा होगा किसानों का। लेकिन आप डीजल की कीमत 4 रुपए पर लीटर बढ़ा रहे हो और पेट्रोल की कीमत 2.5 रुपए पर लीटर बढ़ा रहे हो। मैं समझता हूं कि एक जो 4,000 रुपये आपने किसानों को देना है या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ देना है, लेकिन 4 रुपए पर लीटर की डीजल की कीमत बढ़ा के किसानों से मैं समझता हूं 40-40 हजार कम से कम एक साल में आपने ज्यादा ले लेना है। तो पिछले एक महीने में देखो 3 से 4 रुपए डीजल पेट्रोल का रेट पहले भी आप बढ़ा चुके हो। एक स्कूटर वाले की बात करूं, छोटे दुकानदार की बात करूं, छोटा जो काम वाम करने वाला 7 रुपए यदि उनके डीजल पेट्रोल की कीमत एक महीने में बढ़ जाएगी, क्या 10% जो कीमत आप बढ़ा रहे हो, किसी की आमदन में 10% की बढ़ोतरी हुई है? किसी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है? किसी बिजनेस में उसको 10% की बढ़ोतरी हुई है फायदे में? किसी किसान को बढ़ोतरी हुई है? किसी को नहीं हुई। तो इस बजट को क्या कह सकेंगे? कुछ नहीं, बिल्कुल हॉल फॉलो है, बिल्कुल खत्म है। अरे बिल्कुल विश्वास ही नहीं है ना किसान को ना आम लोगों को। तो बिल्कुल हर फ्रंट पे ये सरकार फेल हो रही है, लोगों का विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। और आने वाले आप देखना इलेक्शन में, यूपी का इलेक्शन आने वाला है या वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, दूसरी स्टेटों में पंजाब में इलेक्शन आने वाला है। ये शायद ये बजट उन इलेक्शन से पहले का लास्ट बजट है, इसका प्रभाव आप देखने वाला बनेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जैसे किसानों का संघर्ष चल रहा है, हरियाणा में भी इलेक्शन आ जाएगा, ये सारा इस बजट का असर सब नजर आएगा। जगतार संघेड़ा जी, आपका भी रिएक्शन में चाहूंगा। आज जो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री की तरफ से, कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि क्या वाकई में जो बातें कही जा रही हैं वैसा ही है या फिर निराशा हाथ लगी? बजट में चंद कंपनियों को फायदा होगा, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी और सभी लोगों को, मेजॉरिटी को इसका नुकसान है, निराशा पल्ले पड़ी है। इस बजट में किसान है के लिए नहीं है, छोटे किसान के लिए नहीं है। मुझे तो पता नहीं पता किस तरह प्रधानमंत्री साहब और साहब को बढ़ावा देगा, कैसे देगा। ये मैंने नरेंद्र तोमर को सुना पहले, वो कह रहे थे कि हमने खेती बाड़ी की आमदन दुगना करना है 2022 तक। भाई ये इलेक्शन थोड़ी है मंत्री साहब, ये तो बजट पर चर्चा है। बजट में बताइए कैसे दुगना होगा। और कह रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब बोल रहे थे, अभी मैं सुन रहा था जब आप प्ले कर रहे थे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एग्रीकल्चर पर मंडियों के ऊपर पैसा लगाने के लिए समाधान किया गया है। 1 लाख करोड़ बजट रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कहते हैं उनके साथ एपीएमसी डेवलप करेंगे, 1000 नई मंडियां डेवलप की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर बताना चाहता हूं, जो नए कानून पास किए हैं उनमें तो जो एग्रीकल्चर एपीएमसी हैं उन पर लागू नहीं होंगे जो नए कानून हैं। उनमें तो एपीएमसी की जो कलेक्शन है, जो उन पर पैसा खर्च होना था, जो टैक्स था, जो फी थी, उसको बोल दिया कि वो 0 होगी। जब किसी सेक्टर को, किसी अदारे को उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे वो चलेगा। ये सब आई बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये फिर 20 लाख करोड़ बैंक्स को दिया जाएगा, वो तो वही है ना जो लेकर पैसा भाग गए हैं बाहर, वो बैंक्स को कंपनसेट करने के लिए होगा। तो इसमें मुझे तो एक भी चीज नहीं दिखी जिससे किसान का फायदा हो, जहाँ किसान की 1.5 गुना, फिर कह रहे हैं एमएसपी 1.5 गुना बढ़ाकर तय की जाएगी। देखिए, कोई बात ऐसे लिपेट कर शुगर कोटेड बातें करनी, इसमें कुछ नहीं दिख रहा। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पढ़ाई भी है, लेकिन यहाँ मुझे कहीं राहत की गुंजाइश नहीं लगती। किसानी का कर्जा है, किसानों के मसले हैं। पहली बात तो ये कि ये जो 3 काले कानून हैं, इनको सबसे पहले रद्द करना चाहिए था। फिर उसके बाद आमदन दुगनी करनी, कैसे करनी है, कितना पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, पंप करना है, और जो उसमें से कितना प्रोविजन किया है, अगर कर्ज माफ करना है तो उसके कितना प्रोविजन किया है। कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है बजट में, किसी भी वर्ग के लिए नहीं है। आई वुड से
सिर्फ कुछ एमएनसी को फायदा होगा इस बजट का। बहुत ही निराशाजनक बजट है। जैसे मेरे कॉलीग श्रोमणी अकाली दल के भाई साहब ने बताया था, हर एक चीज महंगी हो रही है। डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, रसोई की चीजें महंगी होंगी, फल सब्जियां महंगी होंगी, हर एक चीज महंगी हो रही है। इवन पार्ट्स महंगे हो रहे हैं, गाड़ियों में कोई रिपेयर है वो महंगी होगी। किसी भी चीज में कोई राहत दिखाई नहीं देती। राजेंद्र दीपा जी, चूंकि किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए इस बजट में किसानों को लेकर के बड़ी उम्मीदें थी। अगर एपीएमसी के अंदर 1 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात इसमें कही जा रही हो, 1000 नई मंडियों की बात हो रही हो, तो इसके मायने क्या समझे जाएं? क्या आंदोलन के चलते इस तरीके की बातों को इसके अंदर या इस बजट के अंदर एलोकेट करने की कोशिश या बताने की कोशिश है, या इसके कुछ और आप देख पा रहे हैं कि कोई और वजह है कि इसको इसलिए इसके अंदर शामिल किया गया है? ये 1 लाख करोड़ की जो बात कही गई है, इससे क्या सही मायने में एपीएमसी को फायदा मिलता हुआ या 1000 मंडियां नई बनाने की बात से किसान को फायदा मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है? ये नई मंडियों बचाने की क्या बात कर रहे हैं? ये पंजाब हरियाणा में जहां मंडियों का सबसे बड़ा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये 3 कानून यदि ये वापस नहीं लगते तो मैं समझता हूँ 2-2.5 हजार मंडियां पंजाब में है, 1-1.5 मंडी हरियाणा में है, उनको तो आप खत्म कर रहे हो। सारे देश में 1000 मंडी की बात कर रहे हो, 1000 मंडी हम और बनाएंगे। तो जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेते देश के किसानों के लिए ये बजट बेमायने है। कुछ इनका बजट कोई सुन ही नहीं रहा है, किसी को कोई ध्यान नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसान को आपके बजट में। जिस चीज का इंटरेस्ट है वो बात नहीं आप कर रहे। उसमें 12-12 दौर की बात हो गई है, आगे कब होगी या नहीं होगी उसको आप कुचलने जा रहे हो। अपने गुंडे भेज के अपने जो भी आप तंत्र मंत्र जा रहे हो, जिस तरह के लिए संघर्ष को फेल करने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त किसान को क्या बजट में ला रहे हो, क्या आप झूठ बोल रहे हो? 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर की। बिल्कुल किसान को, आम लोगों को आपके बजट में इन फिगर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई असर नहीं है किसान। लेकिन राजेंद्र दीपा जी, आज वित्त मंत्री की तरफ से भी प्रोक्योरमेंट को लेकर के आंकड़े पेश करते हुए और किसानों के लिए हम क्या बेहतर कर रहे हैं उसको बताते हुए साल 2013-14 से लेकर के और 19 और 20 तक के आंकड़े दिए गए। और इस बार का भी उन्होंने कहा चूंकि प्रोक्योरमेंट अभी चल रही है इस वजह से उन्होंने जो फिगर्स है जो अब तक का वो भी रखा। ये भी कहते हुए नजर आई कि हमने एमएसपी पे 1.5 गुना जो बढ़ोतरी है वो भी की है। तो ये जो बातें आज कही गई बजट पेश करने के दौरान या ये जो फिगर्स रखे गए हैं, किसको आप कैसे देखेंगे? क्या ये किसानों को फायदा नहीं पहुंचा रही है? जो सरकार बात कह रही है उससे इतर है? प्रोक्योरमेंट पहली बार हो रही है? प्रोक्योरमेंट तो जब से ये कानून एपीएमसी बने हैं प्रोक्योरमेंट तो तब से चल रही है। और हर साल कुछ ना कुछ हमारा किसान मेहनत करता है, अपना खून पसीने की कमाई करता है और उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है। उसमें इनका जो गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। प्रोक्योरमेंट करते हैं, कितनी करप्शन करते हैं प्रोक्योरमेंट में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कितना इनके में करप्शन है, कितना किसानों पे ये कटौती लगाते हैं। इसमें सुधारों की तो जरूरत है, लेकिन ये इतनी करप्शन करते हैं। प्रोक्योरमेंट तो जब से ये पीएमसी एक्ट बना है तब से चल रहा है, इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये अंडरलाइन करके किसानों की बातें करेंगे ताकि किसानों के मन में कुछ जाए, आम लोगों में कुछ जाए कि किसानों के लिए बड़ा सरकार बहुत कुछ कर रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल कोई असर नहीं है जब तक तीनों काले कानून खत्म नहीं होते। किसानों को इनके इस प्रोक्योरमेंट के फिगर्स पे जो बजट में ला रहे हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फायदा नजर नहीं आता। पहले तीनों कानून वापस लें, फिर उसके बाद किसानों के बैठ के किसानों के लिए क्या पॉलिसी है, कैसे उनकी आमदन को दुगना किया जाता है, एमएसपी पे क्या कानून बनाते हैं, कि क्या उसको लीगल एंटिटी मानते हैं, उसके बाद ही किसानों का फायदा सोचा जाएगा। अब इस बजट से कुछ निराधार ऐसी बातें करना। जगतार संघेड़ा जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो प्रोक्योरमेंट को लेकर के आंकड़े हैं, दूसरा एमएसपी हमने 1.5 गुना किया है, 1000 नई मंडी की बात है, एपीएमसी के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोविजन की बात है। इन सारी बातों के क्या मायने समझे जाएं? क्योंकि किसानों का मुद्दा भी हम लोग देख ही रहे हैं कि किसान अपनी बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन सबके बीच में ये आंकड़े हैं और आज का बजट है, क्या मायने समझे जाएं? को लुभाने के लिए भी कुछ नहीं किया गया। पहली बात तो ये जो किसान संघर्ष कर रहा है, किसान जो आंदोलन कर रहा है, उनकी स्पष्ट तौर पर मांग है कि तीनों काले रद्द किए जाएं, ना कि 1000 मंडी और बढ़ाई जाए। ये तो आईबाश है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार दोबारा बजट को देख लीजिए। ये जो 1 लाख करोड़ रखा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। आई थिंक ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर के लिए नहीं है।
और जो 1000 मंडियां बनाने की बात की गई है, दिस इज ए ओपन एंडेड स्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। इसमें कोई किस सिस्टम में मंडी बनेगी? एक फिजिकल मंडी, एक जगह को चार्ज पारी करके उसको उस वहां फाल लगा देना, केवल वही मंडी नहीं होता। मंडी में कौन खरीद करेगा, किस कीमत पर खरीद करेगा, क्या वहां सरकारी एजेंसी आएगी कंपटीशन बढ़ाने के लिए, किसानों की प्रोटेक्शन के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, तो कई बातें होती हैं। ये बहुत ओपन एंडेड स्टेटमेंट है और आई एम श्योर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसे रखे गए हैं ये सारे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है। इसमें प्रोविजन किया गया है कि 1 लाख करोड़ से 1000 मंडियों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया है। ये सभी गोलमोल बातें हो रही हैं जो सभी लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने बोला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आत्मनिर्भरता होगी, उन्होंने कहा है बजट में आत्मनिर्भरता का विजन है। विजन है मीन्स समथिंग एल्स। तो इसमें कुछ भी नहीं बता सके एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी और प्रधानमंत्री साहब भी और वित्त मंत्री सीताराम वो भी कुछ इसमें बता नहीं सके। तो कुछ भी नहीं है इसमें। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होती है जो किसान की खेती बाड़ी की लागत से पूरी करती है सिर्फ, और ये कोई सब्सिडी नहीं है। ये कोई ऐसे नहीं है कि वो किसान को पैसे ज्यादा दे रहे हैं या किस तरह, कम से कम कीमत दे रहे हैं जिससे खेती फेल ना हो। और इसको पीडीएस सिस्टम के लिए खरीद रही है सरकार, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए खरीद रही है, ताकि वो लोग जो मार्केट से अनाज नहीं खरीद सकते उनको सब्सिडाइज्ड अनाज मुहैया करवाना होता है और बफर स्टॉक रखना होता है 1.5 साल के लिए कम से कम। अगर अकाल पड़ता है या कोई लड़ाई हो जाए अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पर, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, ताकि वो अकाल ना पै जाए, इसलिए स्टॉक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नेसेसिटी है उसके लिए ये सारा खरीदा जाता है। और जैसे मेरे कलीग श्रोमणी अकाली दल के दीपा जी ने बताया है कि ये अब थोड़ी एमएसपी से खरीद शुरू किया है, ये तो पहले से ही है। अब तो याद दिलवाना शुरू किया है कि एमएसपी के पैसे वो जो आप खरीद करते हैं उनको गिनकर बताना शुरू कर दिया। और मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि पंजाब का 12,000 करोड़ रुपया अभी तक नहीं दिया केंद्र सरकार ने। उसमें से ये कहते हैं 4,000 करोड़ ही देंगे, जो खरीदा है उसका भी पैसा नहीं देना चाहते। 8,000 करोड़ जो 3% रूरल डेवलपमेंट फी है, रूरल डेवलपमेंट फंड है जो गांव की डेवलपमेंट के लिए खर्च होता है, उसको भी काट लिया है, अभी तक नहीं दिया, जो कि खरीदने के बाद उसको नहीं काटा जा सकता, इलीगल है। तो सभी एक बात मैंने जो और कही थी कि पंजाब के लिए क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं है पंजाब के लिए। जो रेलवे के फंड बताए गए हैं या रोड के लिए डेवलपमेंट के लिए फंड बताए गए हैं, कुछ राज्यों में है जहां इलेक्शन है, लेकिन उसमें पंजाब का शेयर कहां है? पंजाब के लिए तो किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे लगता है कि जो आंदोलन चल रहा है उसके इर्द में पंजाब को सबक सिखाया जा रहा है, क्योंकि बजट ये पंजाब का तो नाम ही नहीं है बजट में कहीं भी। सो इसमें ये निराशा ही निराशा है। केंद्र सरकार है जो पंजाब से तो मतरेई मां वाला सलूक कर ही रही है, लेकिन इंडिया लेवल के लिए भी, भारत के लिए भी ये विकास वाला बजट नहीं है। इससे विकास नहीं होगा, इससे विनाश होगा। आपको पता है कितने करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं भाई, उनका ख्याल कौन रखेगा? कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार कौन देगा? पहले तो जो लारा लगाते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, अब तो वो बात ही करना छोड़ दिया है। जस्ट यही कहते रहते हैं कि आमदन दुगनी करनी है। कैसे करनी है? कहने से थोड़ी दुगनी हो जाएगी। तो ये विकास वाला बजट नहीं है, विनाश वाला बजट है। महंगाई बढ़ रही है, सारा कुछ इससे नुकसान ही होगा। राजेंद्र दीपा जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि इस बार ये जो बजट है इसके अंदर ये कहा गया और खासतौर से वित्त मंत्री ने भी इस बात को कहा, प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हेल्थ का सेक्टर है उसको फोकस करके किया गया है। 137% का इजाफा इस बार जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें किया जा रहा है, बजट एलोकेशंस में है। क्या लग रहा है कि ये हेल्थ के लिहाज से तो कम से कम इसके अंदर कुछ प्लस पॉइंट नजर आ रहे हैं? आयुष जी, पिछले 6 बजट की बात करें और 6 बजटों में भी इन्होंने हेल्थ पे फोकस करके ही हमेशा बात की है, लेकिन 6 बजटों में और 6 सालों में पिछले देखें कि हेल्थ में कितना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुई है। आज भी सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है?
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? गरीब है जो, उसको तो प्राइवेट में जा नहीं सकता, वहां कुछ जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां कुछ इलाज नहीं है, उसको तो बड़ा मुश्किल में आना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि जो पिछले 6 सालों में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो अब भी इस बजट में भी कुछ कहने से कुछ होने वाला है। जस्ट एक फिगर्स है, एक डाटा है, तो उसमें मैं नहीं समझता। भी ये बेसिकली ये जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोगों में अपना विश्वास खत्म कर चुके। अब कुछ भी ये करने, बजट कैसा तैसा करने, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होना। बिल्कुल कुछ हेल्थ के लिए बिल्कुल निराशा वाला बजट है, बिल्कुल ये किसानों के लिए बात करें बिल्कुल निराशा वाला बजट है। जितने PSU ये बेच रहे हैं, बिल्कुल जो भी होगा आने वाले वक्त में भी आप देखना, पिछले 5-6 सालों में भी इन्होंने जो बड़े घराने हैं, अडानी अंबानी है, उनकी आमदन कैसे बढ़ती है उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ना कि आम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ये अब लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है सरकार से। लेकिन राजेंद्र दीपा जी, ये सवाल पूछा गया वित्त मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनसे भी ये पूछा गया, क्योंकि मिडिल क्लास का जो आदमी है उसको हमेशा ये उम्मीद रहती है कि उसको टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ रिबेट मिल जाए, कुछ छूट दे दी जाए। इस बार कुछ ऐसा हुआ नहीं है, जो पिछला था वैसा ही रखा गया है। इस पर वित्त मंत्री ये कह रहे थे कि कोरोना काल के बीच में लोगों को अंदेशा यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाए। वो बर्डन हमने नहीं डाला है, इसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने एज इट इज ही रखा है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं कहता हूं कि आप कैसे बर्डन नहीं डाला। जो भी रोजमर्रा में आज एक आम आदमी का, आम परिवार का एक बड़ा खर्चा उसके पेट्रोल का, डीजल का है। यदि कोई स्कूटर भी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, वो तो एक बड़ा आम नागरिक है। यदि 2.5 रुपए और या पिछले जब से आप आए हो, जब से ये सरकार आई है, डबल रेट हो गया, 40 रुपए से 80-85 रुपए पेट्रोल का रेट हो गया, डीजल का रेट हो गया। कैसे आम आदमी की जेब पे बोझ नहीं पड़ रहा? और भी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो अपने गैस की बात करें, जो गैस सिलेंडर की बात करें, वो डबल रेट हो गए हैं। और बाकी जो महंगाई है वो कितनी बढ़ रही है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों को इतना फर्क पड़ गया है कि मैं समझता हूं कि ये बजट में कहने की बात है, कुछ स्लैब ने फर्क नहीं डाला, पर लेकिन ये डीजल और पेट्रोल से इंडस्ट्री का आप देखो, छोटी से छोटी इंडस्ट्री, बड़ी से इंडस्ट्री में इसमें फर्क पड़ेगा। एक जो छोटा 2 पहिया चलाने वाला 4 पहिया चलाने पर उसके फर्क पड़ेगा। तो ये तो आम लोगों को बिल्कुल कमर तोड़ने वाला बजट है। आप देखना इसके आगे रिएक्शन क्या होता है। जगदास संगड़ा जी, क्या कि इस बजट को हम ऐसे भी मान लें कि चुनावी बजट है, चूंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर हम लोगों ने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ फैक्ट्रीज के या फिर टेक्सटाइल पार्क या इस तरीके की जो एलोकेशंस हैं वो स्पेसिफिक कुछ स्टेट के लिए हुए हैं, और ये वो स्टेट हैं जहां पर चुनाव होने हैं आगे आने वाले समय में। क्या इसको चुनावी बजट मान के चलेंगे आप? देखिए, ये घोषणा की गई है, ये घोषणा जो की गई है उसका तो थोड़ा बहुत पर्पज लगता है कि उन स्टेट्स को थोड़ा एक दिखाया गया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा बहुत उन स्टेट्स के लिए उनको खुश करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये उनके लिए भी काफी नहीं है। ये होना तो सभी जगह चाहिए था, लेकिन ये नहीं है कि वो सारा कुछ उससे बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। मैं ये जो आपने हेल्थ की बातें जो दूसरी तीसरी पूछी थी, उन बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा जो एरियाज रह गए हैं जी। हेल्थ में इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा दिया है, डायरेक्ट और अनडायरेक्टली। जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है वो वही मालामाल हो रही है, आम लोगों को तो वो सहूलत जा ही नहीं रही। अगर इन्होंने कोई हेल्थ के बारे में करना है, कुछ 1-2 डिस्ट्रिक्ट में ही कर दें। दिल्ली में ये केंद्र सरकार के सभी मंत्री दिल्ली में ही घूमते हैं ना, वहां केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं, वहां स्कूल देख लें। ऐसे स्कूल वहां के जो क्लिनिक हैं, प्राइमरी क्लिनिक हैं, हेल्थ क्लिनिक हैं, वो वहां का सिस्टम देख लें, स्कूल देख लें और हेल्थ फैसिलिटीज देख लें। वैसे एक डिस्ट्रिक्ट में बना दें, एक डिस्ट्रिक्ट में बना देना, फिर भी हम मानेंगे कि ये कुछ कर रहे हैं। स्कूल तो इन्होंने कर दिए हैं, सरकारी स्कूल है, यहाँ आम आदमी के बच्चों ने पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में वो जा नहीं सकते, वो तो स्कूल इन्होंने खत्म कर दिए हैं। एजुकेशन नीड खत्म हो गई है, वहां ऑफिशियली नहीं खत्म किए, उनका वजूद, उनकी एजुकेशन का लेवल बहुत नहीं किया गया है, फैसिलिटीज बहुत कम है। तो उनको बढ़ावा देना चाहिए था, बजट उन चीजों के लिए रखना चाहिए था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, पर मैं पूछता हूं कि जो पहले बनी हुई है उनका क्या बना। और जो एक इन्होंने अनाउंस की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आम आदमी का बच्चा तो कोई नहीं जाएगा। जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, उसको उसमें
आम घरों के बच्चे तो आ ही रहे, जिनकी पॉपुलेशन 60-70% लोगों के घरों के बच्चे जो हैं उनको तो अच्छी सेहत सहूलतें, अच्छी एजुकेशन का लाभ मिल ही नहीं रहा, उनको देना चाहिए। रही बात आपको जो कोरोना काल की आपने बात की है, कोरोना काल में लोगों की रोजगार का नुकसान हुआ है, लोगों की जो तनख्वाह है वो कम की गई है, जो नौकरी से निकाल दिए गए हैं। इवन यहाँ तक कि आपके मीडिया के कई भाई मेरे दोस्त हैं जो या तो उनको आधी सप्ताह पर काम करना पड़ा या कई लोगों को प्रिंट में को घर बैठना पड़ा। तो लोगों का नुकसान तो पहले ही बहुत हो चुका है। और जो वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हमने नुकसान नहीं किया, मुझे एक याद आ गया, जसविंदर भल्ला जी एक बहुत मशहूर कॉमेडियन, बहुत तगड़े एक्टर हैं, उन्होंने मुझे एक बार चुटकुला सुनाया कि मैं दिल्ली गया था और 2000 रुपया कमा लिया। मैंने बोला भल्ला साहब कैसे कमाया? कहते थे मैं ट्रेन में गया था, चेन खींचने का 1000 रुपया जुर्माना था, मैंने जाते वक्त भी नहीं खींची और वापसी वक्त भी नहीं खींची। ये वित्त मंत्री साहिबा तो ऐसी बात कर रहे हैं कि हमने आपको और तंग नहीं किया, हमने आपको और परेशान नहीं किया। तो ये बजट होता है? बजट में तो इनकम के साधन तो बताने ही होते हैं, वो किन जगह पर खर्च होंगे और उसको सोसाइटी को एज ए होल कैसे पैदा होगा। पछड़े वर्गों को आर्थिक तौर पर जो पछड़े हैं या दलित हैं या कुछ लोग हैं या गांव हैं, उनमें कहाँ पैसा लगेगा? जो शहर सीवरेज की सफाई की और मुश्किलें हैं, वहां कहाँ बजट की एलोकेशन की गई है? तो उसमें है ही नहीं कुछ। मुझे आपको ना एक बीजेपी के भाई साहब किसी को लाना चाहिए था, भाई साहब तो नहीं कहना चाहिए जो आजकल जो किसानों के साथ कर रहे हैं, लेकिन आपको बीजेपी के नुमाइंदे को लाना चाहिए था ताकि हमें प्रधानमंत्री साहब तो कुछ बता नहीं सके, शायद ये बीच में से कुछ निकाल कर हमें बताते और मैं और टीपा जी उसका जवाब देते, या कुछ शायद सहमति हो जाते या उससे और क्लैरिफिकेशन पूछते। तो भाजपा वाला नुमाइंदा तो जहाँ है ही नहीं। हमें तो भाई इस बजट में कुछ भी नहीं दिख रहा, विकास जगह विनाश। राजेंद्र दीपा जी, क्या आपको लग रहा है कि ये चुनावी बजट है, इसको इस तरीके से भी मान के चल सकते हैं? और क्या ये माना जाए कि जो कुछ हम लोगों को दिख भी रहा है ये सिर्फ उन स्टेट्स के लिए है जहां पर चुनाव होने वाले हैं, शायद इस पर फोकस रहा है? मुझे ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा कि ये चुनावी बजट है। मैं समझता हूँ नेक्स्ट ईयर जनवरी में या फरवरी, अर्ली फरवरी में पंजाब का इलेक्शन भी होगा, तो मुझे लगता है ये लास्ट बजट है उस इलेक्शन से पहले, और पंजाब की कोई बात ही नहीं है इस बजट में, जैसे संजय जी ने बताया। तो मुझे नहीं लगता यह हो सकता है। मैंने बहुत डिटेल में नहीं किया कि शायद वेस्ट बंगाल के लिए कुछ अच्छी स्कीमें हों या और यूपी का भी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है पंजाब के साथ, उसके लिए क्या है, मैं उसमें डिटेल में नहीं गया। लेकिन पंजाब के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि ये चुनावी बजट है। शायद हो सकता है जो इमीडिएट इलेक्शन आ रहे हैं वेस्ट बंगाल का, उसके लिए किया हो, या शायद तमिलनाडु का इलेक्शन आने वाला है उसके लिए किया हो, लेकिन पंजाब के लिए कुछ नहीं। और आप जो रोजमर्रा के लोग हैं, मैं समझता हूँ जो एक बजट होता है, अपने घर का बजट होता है, उसमें अपना रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों का करना होता है, बिजली का बिल देना होता है, अपना पेट्रोल डीजल का देना होता है, अपना मोबाइल का खर्चा करना होता है, बच्चों की फीस देनी होती है, थोड़ा बहुत उनकी दवाइयों का खर्चा करना होता है, कुछ पढ़ाई पे खर्चा होता है। ये चीजें जो होती है, कपड़ा लेना देना होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें आम लोगों का बजट निर्धारित होता है। इस बजट में उसमें क्या ऐड हो रहा है, उसमें क्या चीज सस्ती हो रही है, मेरे को ये बता दे। वाकई कोई बीजेपी वाला मेरा साथी आया होता तो शायद डिटेल में बता सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ ये डीजल पेट्रोल की खास करके कीमतें बढ़ा के, और जो इन्होंने जो भी टैक्स का कुछ स्लैब में फर्क नहीं डाला, कम नहीं किया, तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो आम लोग हैं, जो एक मध्य वर्ग के लोग हैं, जो छोटा दुकानदार है, उनके खर्चे बढ़ेंगे, उनकी आमदनी बढ़ने का कोई प्रावधान ऐसा लग नहीं रहा है। राजेंद्र दीपा जी, ये तो बात हो गई कि इस बजट के अंदर ये खामियां हैं या इस बजट के अंदर निराश कर देने वाली जो स्थितियां हैं वो बनी है, लेकिन होना क्या चाहिए था? ऐसी क्या चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए थी जो मिसिंग लगी? बस सरकार एक बात कर ले कि जो बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे, उनकी तरफ ध्यान ना दे के आम लोगों की तरफ ध्यान दे तो सब कुछ हो जाता है। जब आपका माइंड ही सेट हुआ कि हमने उनका ही देखना है, और वो लोग ऐसे जो एनपीए कर गए हैं, और इतना पिछले जब से ये सरकार आई है कितने लोग विदेशों में गए, करोड़ों लोग पैसा लेके, बैंक का आम लोग लेना होता है, उनको तो आज लोन नहीं मिल रहा क्योंकि बड़े लोग भाग गए हैं, और उधर भी वो सारे शायद हैं भी गुजरात से, और तो कहीं देश से कोई भागा नहीं है, क्योंकि सारा ध्यान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का
गुजरात पे या उन लोगों पे लगा हुआ है, बड़े लोगों की आमदनी कैसे बढ़ी है? मैं शायद गलत हूँगा कि आम लोगों की आमदनी पिछले 6 साल में कितनी कम हुई है, और जो बड़े उद्योगपति हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, और खासकर अडानी अंबानी, उनकी कितने गुना आमदनी बढ़ी है, इस बजट से पता चल जाता है। ऐसे पिछले बजट आए हैं, और इस बजट से भी आप देखना उनकी आमदनी, जो सरकार पॉलिसी बनाती है फिर उन कुछ घरानों के लिए बनाती है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं बनाती। आम आदमी और बड़े लोगों का फासला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बड़े घरानों की, बड़े कॉर्पोरेट की इनकम बढ़ती जा रही है और आम आदमी की इनकम कम होती जा रही है। बजट तो ऐसा चाहिए कि जो आम लोगों का और बड़े लोगों का फासला कम हो, लेकिन ये बहुत देर से, बहुत पहले से ही फासला बढ़ रहा है। देश की सारी पूंजी 1-1.5% लोगों के पास जितनी पूंजी है उतनी 98% लोगों के पास है। क्या सरकार ये काम कर रही है? क्योंकि इनका ध्यान उन करोड़ पर उनकी तरफ से, उनकी ढंग से पॉलिसियां बनती है, जैसे वो कहते, जैसे काले कानून उनको देख के बनाए गए, उन्होंने जो ड्राफ्ट किया उसी को कैबिनेट में पास किया गया, उसको पार्लियामेंट में पास किया। इसी वजह है कि किसान इतनी देर से बैठे हुए हैं, 4-4 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री बिल्कुल सोच ही नहीं उसके बारे में। जब आम लोगों का सोचेंगे, आम किसानों का सोचेंगे, तो हम कहेंगे कि ये बजट अच्छा बना है। फिर उम्मीद के हम कहेंगे कि ये विकास वाला बजट है। बिल्कुल आज तो निराशा करने वाला ये बजट। जगताप संगेड़ा जी, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या होना चाहिए था जो आपको लग रहा है कि मिसिंग है ये, या इस पर फोकस नहीं किया गया, या इस बात का ध्यान नहीं रखा गया? होना क्या चाहिए था कोरोना काल के बाद इस बजट के अंदर? देखिए भाई, बजट है क्या? इनकम है कि कितनी इनकम होगी, कितनी हो रही है, उसमें एक्सपेंडिचर कितना होगा, कौन कौन से सेक्टर पर कितना होगा, और डिफिसिट होगा या पॉजिटिव बजट, ये सरप्लस बजट है। अगर डिफिसिट है तो उस डिफिसिट को कैसे पूरा करना है? सो ये कुछ बातें हैं। सो किन सेगमेंट्स पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए? जब हम कोरोना काल से निकले हैं, अभी कोरोना गया तो नहीं, लेकिन रोजमर्रा की लाइफ वैसे चल पड़ी है, लाइफ की गाड़ी चल पड़ी है। अभी लोगों के कामकाज शुरू हो गए हैं, उतनी स्पीड से नहीं। इस बजट में जो प्रोविजन करनी चाहिए इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनकी आमदन बढ़े। रोजगार की तो बात ही नहीं की गई इस बजट में। रोजगार पैदा होगा कि बड़े लोगों को पैसा दे दो, इस बहाने कहो कि रोजगार पैदा हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है। तो सरकार को इन वर्गों के हिस्सों में जो पैसा है बंद करना चाहिए। देखिए, एक जो गरीब आदमी है, जो मध्यवर्गीय है, उसने जितनी उसकी आमदन हुई सारी की सारी मार्केट में फेंक देनी है। ये एक्सेलरेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। और जो हायर क्लास है उसमें भी जो इनकम होगी, उसने कोई नई गाड़ी ले लेनी है, उसने भी 90। चलिए जगताप जी, अब आपकी इसी बात के साथ चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी होगी। हालांकि बजट अब आ चुका है, लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी आपने सुना है, और उसके अलावा जो राजनीतिक दल है वो उसको निराशावादी बता रहे हैं। अब देखना यह है कि जो सरकार कह रही है उसका फायदा मिलता कैसे है जनता को। आज